Hello and welcome everyone in our new class of liquid state where we will be learning about intermolecular forces in your liquids. So see, as intermolecular forces it means that जो कुछ भी liquids होते हैं उनके बीच में जो कुछ भी forces of attractions या फिर repulsions होते हैं उनके बारे में अब हम learn करेंगे. देखिए, intermolecular forces means forces of attraction, not the forces of repulsion. First of all, this thing must be clear to everyone. Then after we will move towards the next point, that is जो कुछ भी liquids होते हैं that liquids are nothing but the fluids and they can have simply their shape which is the perfect one, or they have their shape of your container, but they retain their constant volume which is independent of the pressure. What does it mean? It means अगर से आप आपके पानी को या फिर पानी को जिस भी कंटेनर में डालोगे, मेरा मतलब है कि whatever you are water is there, that water if you are pouring that water into tank, then it will acquire tanks whatever the shape is. Then after ये जो कुछ भी आपका अभी वाटर है, अगर से आप मग में, बकेट में, मतलब कि जो भी कंटेनर में आप ये वाटर ऐड करोगे, मतलब कि water is nothing but the example of your liquid state, and whatever this liquid state is there, that liquid state tells you info regarding the simply your that shape and the volume of your liquid state. So whatever the shape of your that liquid is there, that shape will be about your कंटेनर. मेरा मतलब है कि जो कुछ भी लिक्विड स्टेट होगी आपकी, फिर आप उसको वाटर ही नहीं बल्कि रॉकेल, पेट्रोल, डीजल, मतलब कि कोई भी लिक्विड आप जब किसी भी कंटेनर में ऐड करते हो तो उस लिक्विड को उस कंटेनर का शेप आ जाएगा, यही मेरा बोलना है. अब इसके बाद हम टर्न करते हैं हमारे एक्चुअल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स के बारे में. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ let me just try to annotate and tell you. See, whenever you have these your liquids, at that time liquids have three types of intermolecular forces. Very first one is dipole-dipole attractions or dipole-dipole interaction. Next is the London forces, and very next is that after is hydrogen bonding. Then after, once you got clear with the three types, there is the presence of three types of intermolecular forces which can be known as, first one is dipole-dipole interaction, second one is London forces, and third one is hydrogen bonding. Then after, first thing first which we must have to know, that is about our dipole-dipole attractions. Now इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ so that आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सको. Wait a minute, let me just try to zoom this slide so that you can easily clarify with all the things. I think slide is pretty clear to everyone. Now देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस या फिर अट्रैक्शंस जबकि हम बोलते हैं, some literature data will find you will be finding attractions, and in some literatures they have introduced that these interactions as dipole dipole attractions, but some literature data will be having it's some interaction. Okay, now dipole dipole attractions कैसे होते हैं? फर्स्टली हम इस जो कुछ भी हेडिंग है हमारी, इस हेडिंग का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद ही आगे के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, जब कभी भी डायपोल वर्ड आता है तो डाय मतलब टू, पोल मतलब पोल्स. पोल क्या होते हैं? प्लस पोल, माइनस पोल. हियर we are not dealing with the magnetic properties, that is why we are not discussing about the poles of south and north. Here we are dealing with the plus and minus pole, that is why we are dealing with here pole with the plus and minus pole. Plus and minus, dipole interaction matlab plus pole minus pole, दो pole, that is why dipole. So whatever these your poles are there, these poles matlab ki these attractions are about your dipole dipole attractions, and whenever you have these your dipole dipole attractions, मतलब कि दो different आपके चार्जेस में जो कुछ भी attractions होंगे, that those attractions are named as dipole dipole attractions. Those your
interactions are named as dipole-dipole attractions or interaction. Now you may ask me, ma'am, this type of forces or this type of interactions can be present in which type of in which type of molecules? So it should be clear to everyone. Dipole मतलब मैंने जैसे कि अभी अभी आप लोगों को बोला, डाई मतलब दो, दो मतलब प्लस एक और माइनस एक. अब जब ऐसे प्लस और माइनस पोल्स जहां पर भी होंगे, तब आप कौन से मॉलिक्यूल्स कंसीडर करोगे? You will consider every time the polar molecules. It should be the presence of the polar molecules to explain the dipole-dipole attractions or interactions. So simply with this criteria, when you have dipole-dipole attractions or interactions, at that time simply what type of molecules you will consider? Polar molecules. Now polar मतलब क्या? उनमें दो पोल होते हैं. कौन से दो पोल होते हैं? प्लस और माइनस. चलो अब मैं आपको ये सब कुछ हमारे प्रेजेंट डायग्राम में या फिर एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल लेके. So for example we have HCl. For example we have HCl, which I am denoting here by using red mark. So see, अब देखिए हाइड्रोजन की जो कुछ भी साइज होती है वो साइज इज नथिंग बट that hydrogen is having its size which is comparatively smaller than that of your chlorine. Then after ये जो कुछ भी अब हमारी साइज ऑफ हाइड्रोजन है वो साइज कैसी है? देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि size of hydrogen which is denoted by the white color and which is very lesser than that of green color, your chlorine atom. And now ये जो कुछ भी आपका हाइड्रोजन एंड Cl है, मतलब कि H and Cl, whatever these your atoms are there, these atoms electronegativity difference is higher, comparatively higher. And अब जब कभी भी आपके पास में ऐसे electronegativity difference is high in between your two elements, at that time polar type के molecules मिलते हैं आपको. कौन से type के molecules मिलते हैं? polar type के. अब देखिए, now look towards diagram very carefully, and now once you got clear with the chlorine and the hydrogen whose electronegativity means आपके हाइड्रोजन की electronegativity is almost 1.0 and आपके क्लोरीन का electronegativity is 3.0. how much it is? 3.0. wait a minute, यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ मैं. let me take a pen again. अरे it is 3.0. एंड अब मुझे बोलो इन दोनों का डिफरेंस अगर से आप कंसीडर करो, इन दोनों का डिफरेंस अगर से आप लो 3 - 1 अगर से करो तो कितना आ जाएगा? it will be equals to 2. so अब देखिए ये जो कुछ भी डिफरेंस है 3 and 1 में, वो डिफरेंस is came out to be 2. it means comparatively जो कुछ भी electronegativity difference है, that electronegativity difference is quite higher. and now अब देखिए ये सब कुछ हो गया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल के बारे में. कितने HCl मॉलिक्यूल के बारे में? एक HCl मॉलिक्यूल के बारे में. अब बात आती है कि एक ही, मतलब कि आप जब मॉलिक्यूल्स बोलते हो तब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. अगर से एक मॉलिक्यूल नहीं होता है मतलब वहां पे नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स आर दिया, एंड व्हाटएवर दैट नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स आर देयर व्हिच आई एम डिनोटिंग यू हियर, look towards that. Yes, it is right here. And now these are nothing but the different HCl molecules. For example के लिए हमने यहाँ पे आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे सिर्फ three molecules are represented. 3 molecules have given to you. And now when you have these your 3 molecules, at that time simply ये जो कुछ भी 3 मॉलिक्यूल्स है इनमें अब हाइड्रोजन का H एंड Cl का माइनस. अब आपको सबको पता है अनलाइक अट्रैक्ट. अनलाइक मतलब जो सेम नहीं है. और भी एक लैंग्वेज में या फिर डिफरेंट सेंटेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए जब कभी भी डायपोल बोलते हो आप, तब अब इस डायग्राम की हेल्प से मैं बोलती हूँ. देखिए नाउ here is the minus charge, मतलब ये कौन होगा? माइनस मतलब Cl, and ये प्लस मतलब H plus. now here
diagram is very general one. Diagram is very general one, which is about plus and the minus charges, which is about plus and the minus charges which are present in between your polar molecules. Okay, now when you have these type of your polar molecules at that time, let me just rub all these data to explain. अब देखिए ये हो गया HCl के एक मॉलिक्यूल के बारे में या फिर पोलर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के बारे में. Now the second molecule, the third, fourth, fifth and so on molecules are there, huh? But here specifically we are dealing with only these molecules. Here we are dealing with the specifically these molecules. And now ये जो कुछ भी molecules है आपके पास में, इनमें जो कुछ भी माइनस पोल होगा वो किसके साथ में अट्रैक्ट होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. नाउ वॉट एवर दिस माइनस पोल इज दियर, इट विल बी ऑब्वियसली अट्रैक्टेड बाय द प्लस पोल, मतलब कि प्लस चार्ज. देखिए यहाँ पर मैं दूसरा पेन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए ये जो माइनस चार्ज है उसका अट्रैक्शन किसके साथ होगा, प्लस चार्ज के साथ. और ये माइनस जो है उसका अट्रैक्शन प्लस चार्ज के साथ में. ये जो माइनस है उसका अट्रैक्शन माइट बी विद प्लस and this negative can be with this positive, or you can show also this is with this positive or this positive, same as that of for positive, or this negative may attract with this positive and so on. So देखिए या फिर आप ऐसे यहाँ पर भी बोलते हैं प्लस is attracted with this minus or this minus say the, I think I must be audible. These your charges at that time simply unlike attracts. अनलाइक मतलब जो सेम सेम नहीं है वो चार्जेस, जो सेम सेम नहीं है वो चार्जेस एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट करते हैं. एंड नाउ this is explaining you information regarding which type of interaction, dipole interactions or attractions. Now अब एक चीज रह गई है मेरी एक्सप्लेन करते करते, वो बोलने का ट्राई करती हूँ. देखिए अब ये जो कुछ भी फोर्सेस आपके प्लस माइनस में आ रहे हैं, इन जो कुछ भी ये जो कुछ भी अट्रैक्शंस होंगे वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं. तो ये अट्रैक्शंस विल बी वीकर अट्रैक्शंस, एंड दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शंस और दिस टाइप ऑफ फोर्सेस कैन बी नोन एज dipole attractions or dipole interactions. Now I think you are clear with this. If you are not clear, then just pause the video, go just start this video again and try to listen or watch this video again, and I know very well you will be clear with each and every term which I tried to explain you. Now come to the next point. Now अब इसके बाद में बात आती है हमारे सेकेंड फोर्सेस की, जिसका नाम है लंदन फोर्सेस. इसके लिए मैं अनदर पेन यूज करती हूँ सो दैट आप लोगों को इजीली समझ जाओ आप लोग एंड कंपेयर भी कर पाओ. देखिए नाउ लंदन फोर्सेस, अब एक बात बिल्कुल भी माइंड में लाने की नहीं है कि लंदन फोर्सेस वर डिस्कवर्ड इन लंदन या फिर लंदन फोर्सेस वाज गिवन बाय लंदन. ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट द नेम इज दियर. नाउ अब देखिए लंदन फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर, देखिए हाँ अच्छे से सुनिए, एमसीक्यू में वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डाइपोल अट्रैक्शंस कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए. एंड व्हाट टाइप ऑफ दोज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. फिर से मैं एक बार लिख रही हूँ यहाँ पे. अब बात आती है लंदन फोर्सेस की, तो लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी type of your molecules which are non-polar, the type of molecules which are non-polar का best example is the oil. Non-polar का best example is the oil. मतलब oil के जो कुछ भी molecules होते हैं that molecules are not polar in nature. या फिर और एक example ले सकते हैं हम यहाँ पर. अब देखिए आपके पास में अगर से दो एटम्स है, अब अगर से आपके पास में दो एटम्स है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम का यहाँ पर दिया है, देखो
Here there is the presence of helium's one atom and helium's another one atom. Now, अब helium में जो कुछ भी electrons, let me try to zoom in little bit so that you should be clear. Wait, huh? Yes, I think अब आपको पिक्चर अच्छे से दिख रहा होगा, जिसमें कि देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन पोलर इन नेचर. फर्स्टली उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ. नॉन पोलर मतलब क्या? नॉन मतलब नहीं, पोल मतलब पोलर, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर प्लस माइनस पोल खुद से जनरेट नहीं होते हैं, जिसको कि हम जनरेट या फिर इंड्यूस मतलब तैयार कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए वो टाइप ऑफ पोल्स या फिर वो टाइप ऑफ अट्रैक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं वो टाइप के इंटरैक्शंस इंड्यूस होते हैं. अब आप लोग बोलोगे मैम हाउ इज इट पॉसिबल that is to produce or that is to create that type of poles in your atom? So देखिए, अब जब कभी भी हम पढ़ते हैं हमारे हेलियम एटम के बारे में, at that time one of the helium atom is there and another one helium atom is there. I think yellow color is not clearly visible, so let me try to take another pen so that you can observe it carefully and easily. So observe it carefully, that is हेलियम का वन एटम एंड हेलियम का सेकेंड एटम. अब देखिए हेलियम के एटम, अब मैंने हीलियम एटम ही क्यों लिया इसके बारे में पहले तो बोलती हूँ, क्योंकि हीलियम एटम इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोबल गैस एटम whose duplet state is complete one. whose which state बेटा? duplet state is complete. देखिए यहाँ पर हमने दिखाया भी है ये 2+ मतलब क्या, उनको वहां पर बोलना है कि आपके पास में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर दिया. क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर दिया. एंड नाउ ये जो कुछ भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि हीलियम एटम इज हैविंग 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स and 2 number of electrons. Let me continue with the important part of our syllabus, which is regarding the electrons, which is regarding the atoms. So very first one atom is about helium and the second one is again helium atom. So देखिए ये तो कुछ भी 2 हीलियम एटम्स है. अब देखिए अगर सिर्फ उनकी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट है, मतलब उनमें मतलब कि हीलियम दूसरे मतलब एक हीलियम का मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे सो ऑन हीलियम एटम्स एंड हीलियम एटम्स आर दिया. एंड नाउ इज देयर इज एनी फोर्सेस which are present in between your helium atoms? Yes, its answer is yes. But ये जो कुछ भी फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं आपके हीलियम के एटम्स में, ये जो कुछ भी फोर्सेस है, ये फोर्सेस विच आर दीज फोर्सेस आर इंड्यूस्ड, दीज फोर्सेस आर इंड्यूस्ड फॉर सम टाइम, मतलब वो जनरेट होते हैं कुछ समय के लिए. ये फिर से एक बार वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और एक बार से मैं बोल रही हूँ ये फोर्सेस आर ऑल्सो वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की. किसकी हेल्प लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की. कैसे समझा सकते हैं? अब देखिए ये जो कुछ भी आपका न्यूक्लियस है, ये +2 मतलब क्या? न्यूक्लियस. ये +2 मतलब क्या? न्यूक्लियस. लेट मी जस्ट शो इट बाय एरो. ये जो कुछ भी +2 है वो न्यूक्लियस मतलब कि 2 प्रोटॉन्स है, और ये दूसरे आपके हीलियम के 2 प्रोटॉन्स है आपके न्यूक्लियस में. अब बात आती है मैम ओके प्रोटॉन से तो हम क्या करें? यस आई नो वेरी वेल. आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा मैम एटम में क्यों जा रहे, आप तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलने वाले थे, अब आप एटम में क्यों गए? अच्छे से सुनो बेटा, क्योंकि ये जो कुछ भी लंदन फोर्सेस है, लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जिनमें की कुछ पोल्स क्रिएट नहीं होते हैं, वो क्रिएट होते हैं. किसकी वजह से क्रिएट होते थे वो बात मैं पहले आपको एटम्स में समझाऊंगी, उसके बाद में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में समझाऊंगी. ओके, सो ये जो क्लास होगा ना, ये क्लास वैसे तो बहुत मतलब आप अगर से अच्छे से सुनोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें या फिर बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स आपको समझ में आएंगे.
जाएंगे जो कि आपको एप्लीकेटिव पार्ट में आप यूज कर सकते हो। और एक बार से मैं ट्राई टू कम एट द डायग्राम एंड लुक टुवर्ड्स इन डायग्राम। ये जो +2 है, ये जो +2 है आपके एक न्यूक्लियस का और दूसरे न्यूक्लियस का, इसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड सेकंड वन इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड this is electron number 1 and this is electron number 2 about your helium. Now अब जब कभी भी आपके ये इलेक्ट्रॉन्स फिरते हैं उनकी शेल में, तब क्या होता है, उनमें एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, या फिर उनकी स्पिन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, अच्छे से सुनो, क्योंकि आप जब कभी भी केमिस्ट्री में जाओगे ये टर्म आप हमेशा यूज होगी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज में, यही उसका बेसिक होता है। अब देखिए आपके ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो रिवॉल्व होते हैं, जब वो मूव होते हैं आपके इस ऑर्बिट में, एट दैट टाइम induction of charges is there, induction of charges is there, and now whatever this induction of charges is there, this is with ये जो कुछ भी इंडक्शन होता है आपके इस प्रोटॉन का आपके अनदर वन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड योर न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे अट्रैक्शन, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं, इससे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कौन से फोर्सेस, लंडन फोर्सेस बोलते हैं। कौन से फोर्सेस बेटा, लंडन फोर्सेस। अब आप मुझे पूछ सकते हो अब अगर से आप एटम का इलेक्ट्रॉन लेकर के बोल रहे हो इसके प्रोटॉन के साथ में अट्रैक्शन है, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा क्या? यस ऑब्वियसली इट विल बी। एंड ऐसे ही टाइप ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? लंडन फोर्सेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? I think yes, it must be clear to everyone. Now let me turn to, and ये जो टाइप के फोर्सेस है ये मैंने आपको कौन से एटम में बोले हैं? एटम में बोले, जिसको कि मैंने फॉर एग्जांपल एक एटम लिया था हीलियम एटम, 2 हीलियम के एटम लिए थे। कितने एटम लिए थे? 2 हीलियम के एटम लिए थे। एंड नाउ come to the next point from our syllabus or from our next example, which is about your London forces, and that is nothing but, and that one is nothing but the polar molecule, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कैसे लंडन फोर्सेस क्रिएट होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एंड ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो अब आपने यहाँ पर आप बोलोगे मैम अब पोलर मॉलिक्यूल क्यों लिया? आप तो बोल रहे थे ना कि ये जो कुछ भी लंडन फोर्सेस होते हैं वो नॉन पोलर। यस बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो प्रोड्यूस होते हैं, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो यस दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बट वो अगर से पोलर मॉलिक्यूल के क्या बोलते हैं हम सराउंडिंग में आते तो ये फोर्सेस जनरेट होना पॉसिबल है। या फिर हम इसको अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, या फिर अच्छे से हम 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही इसका क्रिएशन देखते हैं। ओके, तो कैसे? अब देखिए ये जो कुछ भी आपके एटम्स थे हीलियम के, उनमें ये जो कुछ भी हीलियम का मॉलिक्यूल था या फिर एटम था, एटम था, उसमें हीलियम 2 4। अब इसमें जो कुछ भी उसका न्यूक्लियस था, उन न्यूक्लियस का प्लस और इलेक्ट्रॉन का माइनस, इन दोनों में ये जो कुछ भी अब फोर्सेस होंगे, इन दोनों में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो है ही, बट ये एक एटम और दूसरा एक एटम जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था वही सेम अब इस प्लस का अट्रैक्शन होगा इस माइनस के साथ और इसके साथ, उसी को हमने इलेबोरेट किया है इस डायग्राम से, दैट इज डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो अब अनदर मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियल क्रिएशन ऑफ योर चार्जेस। एंड ये जो कुछ भी प्लस एंड द माइनस चार्जेस होते हैं, इनमें ये कुछ भी अब फोर्सेस है, ये फोर्सेस को ही हम कौन से फोर्सेस बोलते हैं बेटा जी? लंडन फोर्सेस। आई थिंक एवरीबडी इज प्रिटी क्लियर विद द 2 types of forces which are nothing but, very first one we look, that was which we discussed was nothing but dipole interaction, and second one was London forces. Whereas
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस में जो कुछ भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है दैट इज ओनली 1%, दैट मच, that how much it is only 1%. बट अब आप बोलोगे इसमें भी बहुत कम होता है जो कुछ भी इंडक्शन होता है कोवेलेंट फोर्सेस का वो, बट अब बात आती है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो अब मैं एक नेक्स्ट स्लाइड के हेल्प से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ जो थिंग्स रह गए हैं इन फोर्सेस के बारे में वो बोलना चाहूंगी। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट ट्राई टू load the slide. Okay, so this is nothing but the slide with which you again you can explain the London forces. I told you, as I told you just now, and as I told you, London forces are present in between non-polar molecule. अच्छे से देखो अब यहाँ पर, अब आप लंदन फोर्सेस हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में। किसमें बेटा? हाइड्रोकार्बन्स में। Now what is mean by hydrocarbons? Hydrocarbons are those who represents or who explains you the formation which between only hydrogen and the carbon. मतलब कि hydrocarbon, the word itself it indicates, which you have learned in your school days and in your college 11th and 12th. So whatever these hydrocarbons are there, in hydrocarbons में जैसे भी मतलब ये रेड कलर से हमने जो भी ये बताए हैं ये फोर्सेस, these forces are nothing but the London forces. एक आपका पेंटेन का मॉलिक्यूल, दूसरा पेंटेन का मॉलिक्यूल, उनके बीच में ये रेड कलर से दिखाए गए आपके ये जो कुछ भी फोर्सेस है, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। एंड ये तो हो गया यन पेंटेन के बारे में। बट सेकेंड वन एग्जाम्पल वी हैव इन, आई हैव शोन यू in the slide, and that one is nothing but the नियोपेंटेन। ये जो कुछ भी स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको आपके लंदन फोर्सेस के बारे में। ओके, देन आफ्टर नियोपेंटेन, कौन सा पेंटेन? नियोपेंटेन। नाउ अब देखिए ये जो नियोपेंटेन है इनके बीच में भी ऐसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। अब देखिए इन नियोपेंटेन और आपके एन के जो कुछ भी पॉइंट्स है वो बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही मतलब कि देखिए n pentane is the longest continuous chain, but neopentane is nothing but the branched chain here, which they have shown us by the skeletal diagram, which is right here. Okay, so and because of these forces which are nothing but simply स्लाइटली बॉइलिंग, ये जो फोर्सेस है वो वीक है, दैट इज वाई उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं? वीक मतलब कम, इसका कम है और इसका ज्यादा है, क्योंकि ये एक सेलेक्टेड कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में है, तो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्वाइट स्ट्रांग होते हैं देन दैट ऑफ दिस वन व्हिच इज ब्रांच्ड वन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट which is the next type of our forces and which are known as hydrogen bonding. Hydrogen bonding is denoted by shortcut way that is as HB and HB। HB दोनों भी कैप्स में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड H कैपिटल B स्मॉल से हो गया तो वो बायो इनऑर्गेनिक में जो हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन उसके बारे में हो गया। अब देखिए HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी प्रेजेंट इन बिटवीन योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। किसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, वेयर द एटम्स which is like oxygen, hydrogen, nitrogen whose electronegativity difference is quite higher, और हम another words में बोल सकते हैं कि ये जो कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके हाइड्रोजन एटम में, किसमें? आपके हाइड्रोजन एटम में और आपके
electron is like which is like nitrogen, that is HNH3, and the next example is वाटर, ऑक्सीजन बॉन्डिंग इज वाटर। नाउ अब ये हो गया एक आपके पानी का मॉलिक्यूल जिस पर की ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा बेटा जी, डेल्टा नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। सो ये डेल्टा पॉजिटिव मतलब कि ये जो कुछ भी आपका एच है इट इज पॉजिटिव which will be attracted with the O negative of another water molecule, of what, another water molecule, and like this, ये जो कुछ भी बॉन्डिंग है ना हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वट एवर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दिया, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल और ये क्या हो गया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एंड ये जो इन बिटवीन एक पानी का मॉलिक्यूल और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, मैं दूसरी पेन लेती हूँ, आई थिंक वो बहुत ही फेंट पेन हो रही है, तो ये एक पानी का मॉलिक्यूल OH, which I have denoted here in between two molecules, which is like water and NH3 diagrammatically. But अगर से मैं ऐसे explain करती हूँ और फिर डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अब इस हाइड्रोजन का H प्लस एंड O का O नेगेटिव इन बॉन्डिंग, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छे से सुनो सब लोग बार, कौन सी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस फोर्सेस को हम कौन से फोर्सेस बोलते हैं या कौन से टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इंटर मतलब इन बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट, इंटर कॉलेजियस कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेजियस मतलब दो या तीन या चार डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन होती है, उसको हम इंटर कॉलेजियस कंपटीशन बोलते हैं। और इंट्रा कॉलेजेस मतलब अगर से यूथ फेस्ट हो, यूथ फेस्टिवल वगैरह रहते थे जब कोरोना नहीं था तब ये सारी चीजें होती थी, और आगे भी होने वाली है जब भी कोरोना खत्म होने वाला है। मतलब क्या, अब ये जो कुछ भी इंटर कॉलेजेस कंपटीशन मतलब क्या, दो डिफरेंट, देखिए फुटबॉल मैच बोलो या फिर वॉलीबॉल मैच बोलो या फिर कौन सी भी क्रिकेट मैच, एनी मैच, या फिर dance competition, any competition which is present, which is between two different colleges, that can be known as simply इंटर कॉलेजेस कंपटीशन। तो उसी वर्ड को मैं यहाँ पर ला रही हूँ कि जो ऐसे फोर्सेस जो दो डिफरेंट डिफरेंट सेम टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब कॉलेज कॉलेज के बीच में ही कंपटीशन हो रही थी, मतलब क्या, एक वाटर का मॉलिक्यूल मतलब एक कॉलेज बोलो, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल मतलब दूसरा कॉलेज, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। इसी टाइप के जो कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटर कॉलेजियस कॉम्पिटिशन, दैट इज यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हो रही है तो उसको इंटर कॉलेजेस नहीं बोल सकते, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि हम हमारे लिए अभी अभी यहाँ पर मैं इंटरमोलिकुलर एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद में इंट्रामोलिकुलर के बारे में देखते हैं। ओके, सो वट एवर दिस slide is there, this slide is having hydrogen bondings, two examples. Okay guys, so अब ये जो कुछ भी मैंने बोला था आप लोगों को, अभी अभी बोला था मैंने आप लोगों की, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर, अब मुझे बोलो, आप लोग रिमाइंड करो, चलो मैंने बोला था अभी अभी आप लोगों को कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर से बॉन्डिंग होगी तो उसको कौन सी टाइप की बॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो NH3 मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में अगर से बॉन्डिंग होगी तो उसको भी हम कौन सी टाइप की बॉन्डिंग बोलते हैं, अमोनिया के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट अमोनिया के बीच में होगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया। देखिए ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने डायग्राम में भी दिखाया है। ओके, सो ये जो कुछ भी, अब अमोनिया का मॉलिक्यूल एक और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरा, तो इन दो डिफरेंट डिफरेंट अमोनिया के मॉलिक्यूल में जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर कौन सा चार्ज आया, डेल्टा नेगेटिव आया। देखो यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको, जूम जूम जूम,
यस, ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट आप लोगों को एक ही बार ये सब कुछ क्लास देखना है, हाँ। और पॉज कर करके कहीं पर नहीं समझ रहा है तो आपको देख रिपीट से क्लास देख के क्लियर करना है। ओके, सो अब देखिए, ये जो कुछ भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके इस NH3 मॉलिक्यूल में, देखिए नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एंड इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, वेर एज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ, अगर से आप कंपेयर करो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में, किसमें, अच्छे से देखो, एक यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक हाइड्रोजन रह गया, एक नहीं रह गया था, यहाँ पर है, नीचे है। तो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अब देखिए, हम बोलते हैं एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एंड दूसरे अमोनिया के 3 हाइड्रोजन। सो देखिए, अब जब कभी भी हमारे पास में ऐसे एक नाइट्रोजन, एक क्या, नाइट्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में ऐसी जो बॉन्डिंग होती है, जिसको कि हम यहाँ पर दिखाया है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए बिटवीन सेम सेम, मतलब एक कॉलेज, फॉर एग्जांपल साइंस कॉलेज एंड यशवंत कॉलेज, ऐसे अगर से 2 डिफरेंट कॉलेज के बीच में कंपटीशन हो रही है, पर दोनों क्या है, कॉलेजेस, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो इसको हम बोलते हैं कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब आप लोग पूछ सकते हो मुझे, मैम अगर से हम एक टाइप का मॉलिक्यूल ले और दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल ले, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं पॉसिबल, तो यस, उसका आंसर इज यस, ऑब्वियसली यस है उसका आंसर। एंड क्या होगा वो टाइप का आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल, सो इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड व्हाट इज दैट, एक आपका H2O मॉलिक्यूल एंड दूसरा आपका H2O मॉलिक्यूल। अब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जो कि सेम सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में हो गई। तो अगर से आप लोग यहाँ पर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दैट इज NH3 एंड एक ऑक्सीजन, रुको स्लाइड के बाहर जा रहे हैं, एक H2O एंड एक H ऑफ अमोनिया, ऐसे जब भी आप पढ़ोगे तब भी ये टाइप की बॉन्डिंग इज पॉसिबल, विच इज नोन एज intermolecular hydrogen bonding. I think everybody is pretty clear with the thing which I tried to explain, whose name is nothing but, या फिर उस आज हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमने किसके बारे में पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसके, ओ, ओ, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है जो कि है, मैं स्लाइड लोड कर रही हूँ, रुको। अब ये देखिए, समरी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब आप लोग अच्छे से समराइज करो। हाँ, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कैसे इफेक्ट होते हैं वो देखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर से टेक्स प्लेस होती है तो जो कुछ भी आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर जहां पर कम 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 जहां पर कम 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 आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कम उसके बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी होते हैं ऐसे। एंड देन आफ्टर you can observe it by using, as I told you just now, let me try to just note what kind of substances are there। metallic substances है, diamond है, non metallic substances, मतलब कैसे कैसे आपके, अब आपको ना ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको सिर्फ दे रही हूँ, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सको इस मैंने जो क्लास आपको पढ़ाया उसको। एंड अगर से आप एबल नहीं हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो आई थिंक everybody is clear with the everybody is clear with the simply your दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस पर हमेशा से एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या एमसीक्यू जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बोलती जाऊंगी आपको, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद में हमें क्या डिस्कस करना है वो बोलती हूँ आपको।
देखिए, जब कभी भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलने वाले हैं, तब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारे सिलेबस में वेपर प्रेशर तो है नहीं, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज आपको बोलती हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, विच इज अबाउट सरफेस टेंशन, राइट? सो एंड इस पर आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। लाइक फिजिकल का अगर एक्सपेरिमेंट आपको आता है, तो आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, बिकॉज ऑफ कोविड यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू द लैबोरेटरीज, बट यहाँ पर मैं इतने अच्छे से आपको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या, उस पर किसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होते हैं, हम सरफेस टेंशन लेबोरेटरी में किस apparatus से डिटरमाइन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी। और उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करो और देखो, एंजॉय करो, और प्रैक्टिकल की एग्जाम में जो कुछ भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग माय रिकॉर्डिंग। देन आफ्टर और एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको, अगर से थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा ये क्लास में, मैंने ये पढ़ाया वाला, मैंने सारे का सारा कंटेंट मतलब 8th स्टैंडर्ड से यूजी पीजी लेवल तक का सब लेवल आपको पढ़ाया है इस टॉपिक में। तो आपको अब ये जो कुछ भी क्लास है फिर से रिवाइज करना है और करते ही रहना है, जो कि मैं गूगल क्लासरूम पे रखने वाली हूँ ये सारे लिंक्स फॉरएवर के लिए, क्योंकि आप लोग जब भी चाहे तब रिवाइज कर सको। जहां पर भी नहीं समझ रहा है, वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो एंड क्लियरिफाई करो। फिर से एक बार थैंक यू सो मच एवरीवन। वी विल मीट इन आवर we will meet on in our next video or next class, yeah, of our liquid state, and thereafter then thereover we will be learning about surface tension, and then after viscosity or viscosity by using viscometer. Okay, thank you so much.